Dear students, today I am going to deliver a session on good final year project. This presentation is equally valid for diploma, degree or master degree final year project. Here we'll discuss the some common characteristic of the good project and pathway of project. So listen this session very carefully. It may be the life changer. आप सोचोगे कि सर प्रोजेक्ट के बारे में सेशन है और लाइफ चेंजर कैसे हो सकता है. Here I would like to share my experience. Almost in 90% cases of the company's interview, the company person or HR will ask you the questions from final year project. Right? Because they think that if you have done your final year project sincerely and seriously, you can also work for them seriously and sincerely. So here we will discuss the how to select the topic, current and future industry technology trends, innovation utility, commercial potential, paper and patent, literature survey, and project methodology. So pay your 100% attention. So the very basic question is that how to select the topic. I will give the 3 steps for finalizing the project. Step 1. Identify a topic or problem broadly in general area of interest. Means you need to select your topic of liking, do some background work to acquire the breadth. यहाँ पे आपको ब्रेथ एक्वायर करनी है, डेप्थ के अंदर नहीं जाना है. राइट. रिव्यू द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड थियरीज. टॉपिक कौन सा हो सकता है? टॉपिक में बी रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वेल्डिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक. It may be material science, process parameter optimization, design optimization, solid waste management, traffic study, green building, floating buoyant structure, motor, industry process, home automation, safety and security, intelligent protection and control, recovery of particular content from particular production or process or from wastage, extraction of the selective component, process equipment, novel pyrolysis, treatability study. Here you can observe that first topic is concerned with the mechanical engineering, second one is mechanical and chemical, the solid waste management and structure and all these things with the civil engineering, motor process, industry automation, safety, protection and control related with the EC and electrical, then recovery of particular content and pyrolysis related with the chemical. Right. Now if we discuss the IT related topics, if you're IT student, better is that you first identify the technology. The very common topic for the IT student are mobile application development, ERP development, web development. If we discuss some recent trend, then it may be the data science, business analytics, finance data management, blockchain. Gaming and entertainment industry is also good field for the IT project. IoT, security controlling, real-time monitoring. Now, if we talk the new need or technology trend, you must aware with the industry 4.0 revolution. अगर आपको ये मालूम नहीं है कि इंडस्ट्री 4.0 या 4.0 क्या है, I will put one video on that. In coming years, the industry is moving from point 3 to point 4, and point 4 is the completely cyber physical system. You can also select some topic related to cyber physical system. Now here I am going to suggest some new technology trends: robotics and industrial automation, big data and advanced analytics, IoT, cloud-based service, automating knowledge work, SAP, virtualization, augmented reality, digital commerce, e-commerce, artificial intelligence, machine learning, power sector, security. You can select any of topic related to these technology trends.
So when you are going to select the project topic, keep this thing in a mind. Your project must have some commercial potential, right? The project may be from industry or it may be the user defined, right? But basically in project, we need to improve, modify or innovate for some betterment in existing system, machinery or method. So you can select any of this, and based on this, in GTU, projects are bifurcated as industrial defined problems and user defined problems. Now, if you will read the definition carefully, you will get the idea what you need to do in project. What is IDP? IDP is a project which is designed to improve either product or process in either forms, features or function based on a real life challenge from industry. तो आप प्रोसेस के अंदर भी कुछ चेंज कर सकते हो या फिर आप प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंज कर सकते हो, और चेंज क्या करना है उसके फॉर्म, फीचर्स या फिर फंक्शन, राइट? देन इट इज द आईडीपी. यूडीपी क्या है? यूडीपी इज अ प्रोजेक्ट based upon the need of NGO, informal sector, government organization, or society at a large. Alternatively, UDP may be the research problem identified by your faculty or it may be identified by yourself. Right? Whatever, IDP or UDP, innovation is necessary. Right? Innovation क्या होता है? Right? इनोवेशन का मीनिंग ये नहीं है कि कुछ आपको टोटली नया कुछ करना है या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन डिस्कवरी करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? इनोवेशन मीन्स अटेम्प्टिंग डिफरेंट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे दैट कैन मेक द पॉजिटिव डिफरेंस. मीन्स अभी जो भी रूटीन लाइफ के अंदर या फिर इंडस्ट्री के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसके अंदर कुछ ऐसा चेंजेस करके हमें वो आसान तरीके से करना है, कम रिसोर्स कंजप्शन पे वो करना है, देन इट विल बी द बेस्ट प्रोजेक्ट, राइट? बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो भी डिग्री लेवल के प्रोजेक्ट है या डिप्लोमा लेवल, इवन मास्टर डिग्री और पीएचडी के भी टॉपिक जो है वो होते हैं टू डिजाइन, टू डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइजेशन, मॉडलिंग. तो ये जो भी है ना वो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स है जिसकी कमर्शियल वैल्यू ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होती है, राइट? सो कीप दिस थिंग इन अ माइंड whenever you select the area of interest, right? Then after, next step is to prepare the detail for the identified topic. अभी टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिया है तो क्या करना है? थिंक फॉर द एम एंड ऑब्जेक्टिव. एम और ऑब्जेक्टिव के अंदर डिफरेंस क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूं. सपोज मैंने आइडेंटिफाई किया मेरा एरिया जो है एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, और उसके अंदर मुझे करना क्या है, तो सपोज आई वांट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ होम एयर कंडीशनिंग सिस्टम, राइट? सो दिस इज माय एम, to improve the efficiency or performance of the home air conditioning is my aim. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव वो मैं कैसे करने वाला हूं वो मेरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, टू इवेल्यूट द एग्जिस्टिंग सिस्टम. सेकंड, टू इंट्रोड्यूस द सब कूलिंग. थर्ड, टू इंट्रोड्यूस द सुपर हीटिंग. फोर्थ, कंपेयर द रिजल्ट एनालिटिकली and experimentally. So this is the objective. So you need to think for the aim and objective, then think for the expected outcome. देखो, टॉपिक जब भी आप सिलेक्ट कर रहे हो ना तो आउटपुट में अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है वो भी आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए. एंड देन थिंक फॉर द पाथवे एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशन बेस पे जाना है, एनालिसिस के ऊपर जाना है, वेब डेवलपमेंट पे जाना है, ईआरपी डेवलपमेंट करना है, तो पाथवे क्या होगा और रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए, राइट? ये भी आपको सोचना है. सो दिस इज द स्टेप 2. अगर स्टेप 2 क्लियर हो जाएगा, देन मूव टू द स्टेप 3. स्टेप 3 क्या है? नाउ वी आर हियर गोइंग टू डू सम कॉन्क्रीट वर्क. सो इन स्टेप 3 you need to prepare the detailed description of the problem. The problem statement has to be well defined in 2 to 5 pages with details of fact and figure. यहाँ पे आपको क्या क्या इंक्लूड करना है? आपको एक इंट्रोडक्शन, जो भी कुछ करने वाले हैं वो टॉपिक का इंट्रोडक्शन, एम एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो पेपर के ऊपर आपको रखने हैं, मीन्स लिखना है, ब्रीफ लिटरेचर रिव्यू एंड पेटेंट रिव्यू.
विल डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल। ये लिटरेचर रिव्यू क्या है, क्यों है, पेटर्न क्या है, क्यों है, जीटीयू के अंदर पेटर्न का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट, वो डिस्कस करेंगे। देन मटेरियल एंड मेथड, कौन सी मेथड एडॉप्ट करनी है वो डिफाइन करना है, एंड रेफरेंसेस। इफ यू विल प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट देन यू कैन start the project. So before discussing the literature review, just see the mark pattern. मार्क किसके लिए आपको मिलते हैं? इनोवेशन, यूटिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, identification of trust area and defining the objective with outcome, presentation of your work, methodology related to study, literature review adopted, methodology and literature review, presentation of whole work, report writing, documentation, project report and successful implementation of your project idea, right? ये सब के लिए आपको मार्क मिलने वाले हैं, राइट। यहाँ पे आपने देखा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू। सो लिटरेचर रिव्यू क्या है? लिटरेचर रिव्यू मीन्स यू नीड टू review the existing material available related to your selected topic. Means you need to read some research paper, patent and books. Let's start with the research paper. रिसर्च पेपर क्या होता है, राइट? रिसर्च पेपर एक आर्टिकल है जो जर्नल के अंदर या फिर कॉन्फ्रेंस के अंदर पब्लिश या प्रेजेंट होता है। द जर्नल में भी और कॉन्फ्रेंस में भी इंटरनेशनल और नेशनल। सो बेसिकली रिसर्च पेपर is an article which is prepared by reviewing the existing literature and deriving new meaning. It may be prepared by survey work and some conclusion. It may be prepared by research work. It may be some criticism or commentary on existing articles, right? So these articles are very, very important to your project. Why? Because the content of paper and content of your project is almost same. पेपर कैसे बनता है? तो पेपर के अंदर होता है टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, वर्क, एनालिसिस, रिजल्ट, डिस्कशन, conclusion or summary, future scope, abbreviations, references and excerpt, right? So these are the exactly same content of your project. Means your project also need to have title, abstract, introduction, literature review, methodology, main work, result analysis, conclusion, future scope, abbreviations, reference and all these things. So if you will find one good paper, then your project will become very, very easy, right? पेपर कहाँ से मिलेगा? तो these are some website: Taylor and Francis, Emerald Insight, Science Direct, JGate, Springer Link. You will get thousands of paper from this site, right? उसमें से आपके रिलेटेड पेपर कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे रीड करना है, राइट, हाउ टू रीड द पेपर, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। नाउ व्हाट इज पेटेंट? Patent is a grant given by government to an inventor for having made an invention which possesses the property of novelty and non-obvious industrial utility. Once granted, a patent gives the inventor right to exclude other from making, using, selling or offering same innovation for the 20 years. आसान शब्द में बोलूं तो अगर आपने कुछ प्रोडक्ट, प्रोसेस या डिजाइन ऐसा कुछ नया आइडेंटिफाई किया है और उसके लिए आप पेटेंट के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपका पेटेंट ग्रांट हो जाता है तो वो प्रोसेस, वो डिजाइन या फिर वो जो भी कुछ इक्विपमेंट है वो सिर्फ आप ही सेल कर सकते हो, आप ही उसके अंदर से जो मनी जनरेशन है वो कर सकते हो, राइट? दिस राइट इज नोन एज अ पेटेंट। और पेटेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? हियर इज द लिस्ट। नाउ हियर इज द लिस्ट फ्रॉम वेयर यू गेट द पेटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन।
Now, what is the signification of the literature review? Literature review means review of patent and review of paper. Why I am discussing the patent and paper in session on project? So here is a signification of the paper and patent or literature review. Number one, for getting the background of your topic or project, मीन्स आप जो कर रहे हो, आपने जो सोच के रखा है उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट के ऊपर अब तक क्या कुछ वर्क हो चुका है वो आपको जानना हो तो एक ही ऑप्शन है, you read the patent and paper. Number two, for knowing the history and recent advancement for selected topic, means आपका जो भी टॉपिक आपने अभी सिलेक्ट किया है उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है और करंटली उसके ऊपर कौन कौन क्या क्या वर्क कर रहा है, ये आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी लिटरेचर रिव्यू से. फॉर प्रिपेयरिंग द आउटलाइन ऑफ प्रोजेक्ट और डिफाइनिंग द मेथोडोलॉजी, प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी क्या है, विल डिस्कस दिस इन अ नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स. मेथोडोलॉजी क्या है वो भी आप लिटरेचर रिव्यू करने के बाद ही डिसाइड कर पाओगे. एंड फॉर गेटिंग द रिपोर्ट राइटिंग डायरेक्शन, रिपोर्ट कैसे लिखना है क्या लिखना है वो भी आपको मिलेगा लिटरेचर रिव्यू से. तो मत समझ लीजिए कि पेपर रिव्यू जो है वो आपके पूरे प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट की डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए और प्रोजेक्ट लास्ट में प्रोजेक्ट लिखने के लिए जरूरी है. सो दिस इज व्हाई आई हैव डिस्कस द पेपर एंड पेटेंट इन द सेशन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट, right? In GTU you have to search at least 5 patent related to your topic in 7th semester and need to upload all this information in a web portal, and in 8th semester you need to draft your patent, right? So it is very very important to review the paper and patent. Now we are going to discuss the methodology. So before defining the methodology, keep this thing in your mind. Now if you are going for the industry based project, first you need to define one key person and do some background study of the problem, and then decide to go the days for industry, because in 7th semester you may get the permission for 2 to 3 days, and for the final semester you may get the permission for the at least 4 to 5 days, right? If you are going for the experimentation, you need to decide the budget, setup, consumables, time, analysis, software requirement, right? And if you go for the survey work, you need to collect the database, then you need to prepare the questionnaire, define the methodology of the data collection, and then analysis software, right? Now let's discuss the generalized methodology of the project, which is of the experiment type or the survey type. In this kind of project, we need to establish the relationship between the independent parameter and dependent parameters. So what is independent parameter and dependent parameters? I will give one example. समझिए आपने कुछ मशीनिंग प्रोसेस के ऊपर प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है, राइट? तो मशीनिंग प्रोसेस के अंदर सरफेस फिनिशिंग क्या है, मटेरियल रिमूवल रेट क्या है, कंजप्शन क्या हो रहा है, ये सब डिपेंडेंट पैरामीटर है. और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट पैरामीटर. वो क्या हो सकते हैं? तो इंडिपेंडेंट पैरामीटर जो है वो है रोटेटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट है, फीड ऑफ टूल है, फिर टूल ज्योमेट्री है, राइट? तो ये सब जो है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है. और अल्टीमेटली हमें करना क्या है? हमें ऑप्टिमाइज कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है. सो इन दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, data collection and measurement is there, then you apply some statistical analysis, then establish the relationship and get the result and conclusion, right? So this is the methodology of the project. मेथड क्या होती है? सपोज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आप जो है एनोवा यूज कर रहे हो या फिर फैक्टर एनालिसिस यूज कर रहे हो, तो वो है मेथड, राइट? डेटा कलेक्शन के लिए कुछ आप क्वेश्चनरी यूज कर रहे हो, राइट? तो वो हो जाएगी आपकी मेथड, राइट? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेथोडोलॉजी ऑफ द प्रोजेक्ट. मेथोडोलॉजी मींस स्टार्ट कहां से करना है और एंड कहां पे करना है. ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पैरामीटर क्या है समझने के लिए थोड़े एग्जांपल देखते हैं, राइट? इंडिपेंडेंट पैरामीटर क्या हो सकता है? अगर मेरा प्रोजेक्ट जो है वो वेल्डिंग का है, राइट? सो करंट डेंसिटी, ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ टॉर्च और रोड,
देन टॉर्च एंड रोड एंगल, फ्लक्स, ये सब जो है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। और डिपेंडेंट पैरामीटर कौन से होंगे? स्ट्रेंथ, डिफेक्ट जनरेशन, अपीयरेंस इज अ डिपेंडेंट पैरामीटर। स्पीड, मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, टूल ज्योमेट्री, मटेरियल, ये सब कुछ जो है वो है इंडिपेंडेंट पैरामीटर। और डिपेंडेंट पैरामीटर है मटेरियल रिमूवल रेट, सरफेस फिनिशिंग, राइट। सपोज सिविल का प्रोजेक्ट है, सो मिक्सिंग ऑफ कंटेंट, कंक्रीट के अंदर मिक्स क्या है, अमाउंट ऑफ मिक्सिंग, रिटेंशन टाइमिंग, ये सब इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फिनिशिंग, डिफेक्ट जनरेशन, ये जो है वो है डिपेंडेंट पैरामीटर है। सपोज केमिकल रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, तो टेम्परेचर, प्रेशर, प्रोसेस पैरामीटर, टाइम, मेथड, ये जो है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। एक्सट्रैक्टेड क्वांटिटी, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है वो डिपेंडेंट पैरामीटर्स है। होप यू आर क्लियर फॉर द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट पैरामीटर, राइट। सो ये करना कैसे है, राइट। सो वी हैव वेरियस मॉडल्स, राइट। वन इज अ मैथमेटिकल मॉडल, एक्सपेरिमेंटल मॉडल, एनालिटिकल मॉडल एंड सॉफ्टवेयर मॉडल, राइट। अभी इनमें से कौन सा मॉडल सिलेक्ट करना है वो आप कौन से लेवल का प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। सपोज आप डिप्लोमा का प्रोजेक्ट कर रहे हो, राइट, तो आपको जो भी एक्सपेरिमेंटेशन या जो भी आप मॉडल बना रहे हो, वर्किंग मॉडल, दैट इज गुड इनफ, राइट। उसके ऊपर ज्यादा कुछ वर्क, एक्सपेरिमेंटेशन या एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। मॉडल आपका वर्क कर रहा है तो डिप्लोमा लेवल के लिए वो अच्छा है, राइट। नाउ इफ यू आर वर्किंग एट अ डिग्री लेवल, राइट, तो डिग्री लेवल पे आपको एक्सपेरिमेंटेशन तो करना ही है, बट उसके साथ सॉफ्टवेयर मॉडल भी तैयार करना है। एंड देन यू नीड टू गिव द कंपैरिजन बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल मॉडल एंड सॉफ्टवेयर मॉडल। एनालिटिकल मॉडल आप बना सकते हो तो देन इट इज द बेस्ट। अगर यही प्रोजेक्ट मास्टर डिग्री लेवल का हो तो उसके अंदर आपको एनालिटिकल मॉडल भी प्रिपेयर करना है, और एक्सपेरिमेंटल मॉडल के जो भी रिजल्ट है वो एनालिटिकल मॉडल थ्रू आपको वैलिडेट करने हैं। और मैथमेटिकल मॉडल बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। पीएचडी लेवल का अगर रिसर्च वर्क प्रोजेक्ट है तो मैथमेटिकल मॉडल भी आपको यूज करना है। नाउ लेट डिस्कस द मेथोडोलॉजी, इट व्हाट शुड बी मेथोडोलॉजी ऑफ द गुड प्रोजेक्ट। So you need to start the project with the literature survey and prima facie inquiry. Literature survey includes the review of paper, patent, article, books, right? Prima facie inquiry means you need to contact the expert, you go for the industry visit, do market research, and then after make the analysis of your collected information and decide your pathway, means define your problem, एम, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, क्वेश्चनरी डेवलपमेंट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो भी कुछ करना है वो आपको प्रिपेयर करना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ द डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के साथ अगर आपको एनालिटिकल, मैथमेटिकल या सॉफ्टवेयर मॉडल यूज करना है तो वो भी आपको इस लेवल पे डिफाइन करना पड़ेगा। एंड आफ्टर कलेक्शन ऑफ डेटा यू नीड टू यूज सम स्टैटिस्टिकल टूल, राइट। यू हियर यू नीड टू डिसाइड द मेथोडोलॉजी, मीन्स आप कौन से टेस्ट करने वाले हो, रिलायबिलिटी टेस्ट करना है या नहीं करना है, या फिर एनओवा यूज करना है, फैक्टर एनालिसिस करना है। सो गो फॉर द डेटा एनालिसिस एंड अल्टीमेटली you will get some result, prepare your conclusion and summarize the project. Now here I am going to discuss some very important points regarding the project. Idea matters, not just the size of project. प्रोजेक्ट बड़ा होना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपका जो आइडिया है वो मैटर करता है। इनोवेशन एंड कमर्शियल वैल्यू वो मैटर करती है। नंबर टू, a semi finished project done properly may fetch more score than the fully finished ordinary project। देखिए, इनोवेटिव प्रोजेक्ट हो जिसकी कमर्शियल वैल्यू हो, वो आधा कंप्लीट होगा तो भी ज्यादा मार्क उसको मिल सकते हैं, राइट। Partially completion can be tolerated for the good innovative big size work, but fully accomplished work maybe get extra points, right। मीन्स ऐसा भी नहीं है कि मैंने बोला कि हाफ प्रोजेक्ट भी चलेगा, राइट। फुल प्रोजेक्ट की भी अपनी वैल्यू होती है। मॉडल, सर्किट, डेमो, वीडियो, एनिमेटेड फिल्म, काइंड ऑफ सपोर्टिव मटेरियल
must be there for defining your work. Generally, complete one third of the total work in or semester, and then remaining two third work before the end of even semester. ऐसा क्यों? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो स्टेप 3 था, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो फर्स्ट फेज के अंदर मीन्स आपका जो और सेमिस्टर है, राइट, तो पहले सेमिस्टर के अंदर आपको सिर्फ प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, कौन से मेथड आप यूज करने वाले हो वो क्लियर करना है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर बनाना है तो रिसोर्स गैदरिंग करना है, राइट? बाकी का टू थर्ड वर्क जो है, जो ज्यादा पोर्शन है, वो आपको करना है नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर, क्योंकि डिफाइनिंग के अंदर अगर आपने प्रॉपरली टाइम दिया है तो रिमेनिंग वर्क विल बिकम वेरी इजी. A student may take either IDP or UDP, industrial defined or user defined, or even खोखो रीडे मॉडल प्रोजेक्ट. खोखो मॉडल मीन्स अगर आपके कुछ सीनियर्स जो है उसने कोई प्रोजेक्ट किया है और उसके अंदर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई स्कोप है, तो आप पुराना प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट करिए और पुराने प्रोजेक्ट को आप कैरी फॉरवर्ड करिए, राइट? तो खोखो मॉडल इज ऑल्सो अलाउड इन GTU, even in almost all universities. The number of students per group for a project has to be decided by the college department or project guide. अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो तो यूनिवर्सिटी जो है वो 10 जन को भी अलाउ कर सकता है, राइट? इन स्पेसिफिक केस द गाइड में अलाउ इंटर कॉलेज प्रोजेक्ट आफ्टर द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द प्रिंसिपल्स. देखिए, GTU के अंदर और मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर आप इंटर कॉलेज प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, राइट? बट उसके लिए आपको प्रिंसिपल जो भी है दोनों कॉलेज के, उनसे कंसर्न लेना है. The student can take interdisciplinary project after the consultation with the guide in his or department. देखिए, इंटरडिसिप्लिन प्रोजेक्ट जो होते हैं ना वो ज्यादा रिलेवेंट भी होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री की जो नीड है या जो सोसाइटी की भी नीड है, उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि साइबर फिजिकल सिस्टम है, राइट? तो बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि उसके अंदर आपको जो कोर डोमेन है उसका भी नॉलेज चाहिए, आपको IT डोमेन है उसका भी नॉलेज चाहिए, तो आप इंटरडिसिप्लिन प्रोजेक्ट कर सकते हो. नाउ द इश्यू ऑफ प्लेगरिज्म. प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म मींस आप किसी और का वर्क एज इट इज उठाकर अपना वर्क है ऐसे प्रेजेंट करते हो, यूजिंग समवन एल्स वर्क इन द फॉर्म ऑफ आइडिया और रिजल्ट एंड पासिंग इट ऑफ एज वंस ओन वर्क विदाउट गिविंग द रेफरेंस. तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट? लीगली ये क्राइम है. अगर किसी और के वर्क को आप अपने वर्क के नाम से भी प्रेजेंट यूनिवर्सिटी के अंदर करोगे, राइट, तो ये लीगल क्राइम है. तो प्लेगरिज्म आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट? यू मस्ट हैव सम स्किल एंड हैबिट्स, राइट? दीज आर थिंकिंग, नोइंग, comprehension, problem solving, critical thinking, creative thinking. You must know how to do literature review, then experimentation, modeling. You must have some technical communication skill, and you need to manage the time and stress, right? And remember, whenever you do all these things, keep the habit to do the documentation. जो भी कुछ मटेरियल आपको मिल रहा है ना, तो एक एक फोल्डर के अंदर आप सेव करते रहिए, और वो फोल्डर भी आप चैप्टर वाइज बनाइए कि सपोज सम मटेरियल इज फॉर द इंट्रोडक्शन, सम मटेरियल इज फॉर द conclusion chapter, some material is for the analysis chapter, some material is for the description chapter, right? Last, I would like to say that if you want to do a good project, remember this thing: if you have 10 hours for chopping a tree, spend 5 hours for sharpening the axe. Now what is the meaning of this? If you want to do a good project, you need to do well background work. जो टोटल प्रोजेक्ट का वन थर्ड वर्क ही जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर करना है. क्यों वन थर्ड वर्क ही करना है? क्योंकि डेट पीरियड इज फॉर द शार्पनिंग द एक्स. मींस आपको लिटरेचर रिव्यू डिटेल के अंदर करना है, मटेरियल गैदरिंग करना है, रिसोर्सेज डिफाइन करना है. ये सब कुछ आप पहले सेमेस्टर के अंदर कर लोगे तो दूसरे सेमेस्टर के अंदर और एनालिसिस का पोर्शन जो है वो फिर रहेगा. So before ending the session, I would like to request all like, share and subscribe the channel.